عثمانی تخت کے طاقتور حاکم سلطان محمد سوم سلطان محمد سوم جو گورنری پر بھیجا جانے والا آخری شہزادہ تھا اور سلطنت عثمانیہ میں تخت پر بیٹھا، نے ایگر کو فتح کیا اور کیریسٹس کی جنگ نہیں لڑی۔ سلطان محمد سوم 13 وہ عثمانی سلطان اور 72 وہ اسلامی خلیفہ اور سلطان مراد سوم کے بیٹے تھے۔ جب سلطان سلیمان اول، جسے سلیمان اعظم کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، کو معلوم ہوا کہ اس کی موت سے قبل اس کا ایک پوتا ہے، تو اس نے اس بچے کا نام اپنے پردادا سلطان محمد دوم کے نام پر رکھا، جسے محمد فاتح بھی کہا جاتا ہے۔ اس وقت کے عظیم ترین علماء سے اچھی تعلیم حاصل کرنے کے بعد شہزادہ محمد سوم کو ایک شاندار تقریب میں ختنہ کیا گیا اور گورنر کی حیثیت سے منیسا بھیج دیا گیا۔ وہ آخری شہنشاہ تھا جسے سنجک میں گورنر کے طور پر بھیجا گیا تھا۔ اس کے بعد مستقبل کے شہزادے ہمیشہ محل میں رہتے تھے۔ وہ اپنے والد کی وفات کے بعد 1595 میں 29 سال کی عمر میں تخت نشین ہوا۔ جانشینی کے بعد اس نے خود کو عثمانی آسٹریا جنگوں کے وسط میں پایا جو 1593 سے جاری تھی۔ نوکرشاہوں کے تنازعات اور گرینڈ وزیر سنان پاشا کی لاپرواہی کی وجہ سے جنگ طویل ہوئی۔ دوسری طرف ایریڈیل، ٹرانسلوینیا، فلک ولاچیا اور بوگیدان مولڈویا نے بغاوت کی۔ کمانڈر محمد پاشا کی بزدلی کی وجہ سے ایسٹرگون اور ویسگراڈ 7 اگست 1595 کو آسٹریا کے ہاتھوں میں چلے گئے۔ عثمانی فوج تباہی سے بچ گئی کیونکہ وہ لڑتے ہوئے پیچھے ہٹ گئی۔ دوسری طرف گرینڈ وزیر سنان پاشا نے ولاچیا پر قبضہ کر لیا اور بخارسٹ کا خاتمہ ہو گیا۔ تاہم جب سنان پاشا نے ولاچیا میں سیکیورٹی قائم کیے بغیر چلے گئے تو ولاچیا کے ویووڈے مائیکل اول نے عثمانی افواج کی پیروی کرنا شروع کر دی۔ جب فوج ڈینوب کو عبور کر رہی تھی تو ولاچیائی فوج وہاں پہنچ گئی کیونکہ سنان پاشا غیر ضروری طور پر ٹھہرے ہوئے تھے۔ 27 اکتوبر 1595 کو اس پل کو توپ کی فائرنگ سے منہدم کر دیا گیا اور ایک نجی حملہ آور فوجیوں کو تباہ کر دیا گیا جو ابھی تک اسے عبور نہیں کر سکے تھے۔ اس طرح ترک ایک نجی فوجیوں کو ایک بڑا جھٹکا لگا جس پر وہ قابو نہیں پا سکے۔ سنان پاشا اور ان کے بیٹے محمد پاشا، جنہوں نے ان آفات کا سبب بنایا، عثمانی تاریخ کی بدترین شخصیات میں سے ایک ہیں۔ سنان پاشا، جسے برطرف اور جلاوطن کر دیا گیا تھا، نے تقریباً تمام سیاستدانوں کی مخالفت کے باوجود 2 سال پہلے بغیر کسی معقول وجہ کے آسٹریا کے خلاف جنگ کا اعلان کیا تھا، اور اس نے فخر کیا تھا کہ وہ مقدس رومی شہنشاہ کو زنجیروں میں جکڑ کر استنبول لائے گا۔ سلطان محمد سوم نے اپنے استاد صد الدین آفندی کی تجویز پر ذاتی طور پر مہم چلانے کا فیصلہ کیا۔ ہر جگہ یہ خبر بھیج کر کہ وہ کسی مہم پر جائیں گے، انہوں نے قوم کے دل و دماغ کو میدان جنگ پر مرکوز کر دیا۔ 12 اکتوبر 1596 کو ایگر ارلاؤ پر مارچ کرنے والی فوج نے قلعہ فتح کیا۔ 25 اکتوبر 1596 کو عثمانی فوج اور 150,000 کی دشمن فوج نے میزو کریسٹس میں ملاقات کی۔ دشمن کی فوج جرمن، ہنگری، پوپل، فلورنٹین، پولش، چیک اور سلوواک افواج پر مشتمل تھی۔ عثمانی فوج تقریباً 100,000 افراد پر مشتمل تھی۔ جنگ کے دوسرے دن اتحادیوں نے حملہ کیا، عثمانی دستے پیچھے ہٹ گئے۔ یہ سن کر کہ دشمن ایک تیر کے فاصلے پر ہے، سلطان محمد سوم اپنے خیمے میں گیا اور پیغمبر اسلام کی چادر پہن لی۔ اس نے اپنا نیزہ ہاتھ میں لیا اور دعا مانگنے لگا۔ اگرچہ بڑے وزیر نے اسے دستبردار ہونے کا مشورہ دیا، لیکن اس نے صد الدین آفندی کی رائے پوچھی۔ انہوں نے کہا، جنگ اسی طرح ہوتی ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنی جگہ ثابت قدم رہیں۔ سلطان کو اپنے سفید لباس میں اپنے گھوڑے پر سوار دیکھ کر اور صد الدین آفندی کو سلطان کے گھوڑے کی چادر تھامے دیکھ کر سپاہیوں کے حوصلے بحال ہو گئے۔ دوسری طرف سلطان نے سپاہیوں کو چیخنے پر مجبور کیا، دشمن بھاگ گیا ہے۔ یہاں تک کہ فوج کے سروس یونٹوں نے بھی دشمن پر حملہ کیا جو وہ پکڑ سکتے تھے۔ اتحادی فوج کو دلدل میں دھکیل دیا گیا اور ان میں سے 20,000 ہلاک ہو گئے۔ تاتار کے گھڑ سواروں نے فرار ہونے والے 60,000 افراد کو بھی ہلاک کیا۔ اس طرح تباہی کی ایک بڑی جنگ جیت لی گئی۔ اس فتح میں سرکردہ کمانڈروں کا غلو سنان پاشا اور کریمین خان فتح اول گیرے نے بہت بڑا کردار ادا کیا۔ اگرچہ کچھ جدید مورخین اسے حادثاتی فتح کے طور پر پیش کرتے ہیں، لیکن یہ سچ نہیں ہے۔ فوجیوں کی پسپائی ایک تصویراتی جنگی حکمت عملی تھی جس کا مقصد دشمن کے توپ خانے کی طویل رینج کے نقصان پر قابو پانا تھا۔ کیریسٹس کی جنگ نے ایک بار پھر ظاہر کیا کہ عثمانیوں کے خلاف میدان جنگ میں شامل ہونا کتنا غلط تھا، جن کے پاس دنیا کی سب سے مضبوط زمینی فوج تھی۔ سلطان محمد سوم، جو اب ایگر کے فاتح کے طور پر جانا جاتا تھا، کی ذاتی طور پر مہم میں شرکت نے فوجی بیوروکریٹس کی نااہلی کی تلافی کی۔ عثمانی مورخ ابراہیم پیوی کہتے ہیں،
कैरिस्टस की जंग मोहाक की जंग से छूटी फतह नहीं थी। अगर इस जंग में फौज बदीन पर पेश कदमी करती तो दुश्मन के जेर कब्जा तमाम कले गिर जाते। अगर उन्होंने मौसम सरमा बलगराद में गुजारा होता और कम अज कम मौसम बहार में दोबारा कार्रवाई की होती तो नतीजा मुख्तलिफ होता। लेकिन फतह के जोश व खरूश में वजीरों और सिपाहियों की सबसे बड़ी ख्वाहिश ये थी कि वो जल्द अज जल्द इस्तांबुल वापस आ जाएं। जंग से पहले जब ट्रांसलोवीनिया के हामियों ने उस्मानियों अजंगी काउंसिल में इत्तेहादियों का साथ देने के बारे में पूछा तो हर किसी ने उस्मानियों का साथ देने के ख्याल की वकालत की, लेकिन विवुड ने नहीं सुना। कैरिस्टस की लड़ाई के बाद उस्मानियों के लिए हिमायत ट्रांसलोवीनिया, विलाचिया और मोल्डविया में मजबूत हुई। 1601 में आर्च ड्यूक फर्डिनेंड दुवम ने 80,000 फौजियों के साथ नागी कनिजा के किले का मुहासरा किया। शदीद सर्दी की वजह से कुमक नहीं आ सकी। 9,000 फौजियों के साथ किले का दिफा करने वाले तरियकी हसन पाशा ने फौजियों को यकीन दिलाया कि फौजी कुमक जल्द ही जाली खतूत के साथ पहुंच जाएगी। ये तासुर देते हुए कि किले में तोप नहीं है, इसने दुश्मन को किले के करीब लाया और फिर तोप के गोलों से बहुत से जानी नुकसान उठाए। किले से अचानक और तेज रफ्तार हमलों के साथ बार बार हमले करके इसने दुश्मन को 18 नवंबर 1601 को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। दुश्मन का गोला बारूद कब्जे में ले लिया गया। इसे ऑस्ट्रिया की जंगों की हतमी फतह समझा जाता है। चुनांचे जब सुल्तान मोहम्मद सिवम ने तरीकी हसन पाशा को मुबारकबाद दी और उन्हें वजीर का दर्जा दिया तो पाशा फूट फूट कर रोने लगे और ये कहकर अपनी हैरत नहीं छपाई कि माजी में ऐसी सादा खिदमात पर ऐसा इनाम नहीं दिया जाता था। मौरखीन का कहना है कि तरीकी हसन पाशा सल्तनत की अजमत को इतना ज्यादा समझते थे कि वो रियासत की तरफ से तारीफ किए जाने पर खुद से हसद भी करते थे। जिम्मेदारी का ये एहसास तकरीबन तमाम साबिक फौजियों में मौजूद था जो किसी इनाम की तवक्को किए बगैर रियासत और कौम की खिदमत को अपना सबसे फितरी फरीजा समझते थे। दरी असना अनातोलिया में एक गैर मुतमिन अवाम की क़यादत में सीलाली बगावतें फूट पड़ीं। ये नाम बोजुकलो सीलाल नामी एक सिपाही घड़सवार अफसर से आया है जिसने सुल्तान सलीम अव्वल के आखिरी दौर में अनातोलिया में बगावत की थी, जिसे सलीम रिजोलूट के नाम से भी जाना जाता। ये तय किया गया था कि 30,000 फौजी कैरिस्टस की जंग के दौरान फरार हो गए थे। जंग के बाद उन्हें फौज से निकाल दिया गया। इस बेदखली के दौरान ऐसे लोग भी थे जो मुनसिफाना वजूहात की बना पर जंग में हिस्सा नहीं ले सके, वो लोग जिन्हें फौज में उनकी जगह हासिल करने वाले किसी शख्स ने बदनाम किया। मजीद बरा करियमीन खान गाजी तजर्बाकार गिरे जो मुहिम में नहीं आया और अपने भाई को भेजा को बगैर किसी उज़्र के बरतरफ कर दिया गया। 30,000 लोगों को बेदखल करना, जिनकी आमदनी का वाहिद जरिया फौज में उनकी मुलाजमत थी, बगावत की सबसे अहम वजह थी। वो अनातोलिया में फैल गए और डाकुओं में मशगूल होने लगे। इसके अलावा तुर्कमानों में हसद की वजह से जनीसरियों की तादाद में इजाफा, सियासतदानों की नाअहली और अनातोलिया के लोगों की बतदरीज गुर्बत, जो कसरत में रहने के आदी थे, ने सूरत हाल को मजीद खराब कर दिया। दरी असना किरियाज़की अब्दुल हलीम नामी एक साबिक अफसर जिसने दावा किया था कि उसे नाइंसाफी का निशाना बनाया गया था, भी इसके अर्द गिर्द जमा गैर मुतमईन हुजूम के साथ बगावत में उठ खड़ा हुआ। हुकूमत ने आर्जी तौर पर उसे आमसिया की गवर्नरी देकर बगावत को बुझा दिया, लेकिन किरियाज़की ने दोबारा बगावत की और खुद को खुद मुख्तार करार दिया। इस बगावत को बड़ी परेशानी के साथ दबा दिया गया था, लेकिन ये एक आर्जी फतह रही क्योंकि बगावत की वजूहात का अजाला नहीं किया गया था। अगले साल नई बगावतें शुरू हुईं और उनमें से कुछ इस्तांबुल तक फैल गईं। हुकूमत बागियों के साथ मुआहिदा करके कुछ अरसे के लिए बगावत की आग बुझाने में कामयाब हो गई। सुल्तान के 16 साला बेटे शहजाद महमूद ने अपने वालिद से कहा कि वो इसे अनातोलिया का कमांडर उन चीफ मुकर्रर करे और कहा कि वो सीलाली बगावतों पर काबू पा सकता है। अपने बासलाहियत पुरजोश लेकिन लापरवाह इक़दामात की वजह से शहजादे ने खुद को एक साजिश के दरमियान पाया और 7 जून 1603 को इसके वालिद ने इसे फांसी दे दी। ईरानी शाह अब्बास सिवम, जिन्होंने इन तमाम वाक़यात को एक मौका के तौर पर देखा, ने यूरोपीय रियासतों के साथ इत्तेहाद करके उस्मानी सरहद अबूर की। तबरेज़ के गवर्नर की फौज को शिकस्त हुई, गवर्नर मारा गया। शाह ने तबरेज़ का मुहासरा कर लिया। जब किले में मौजूद लोग बेबस थे तो उन्होंने अपना झंडा लहराकर हथियार डाल दिए। अगरचे ऐसी सूरत हाल में हथियार डालने वालों के जान और माल को नुकसान पहुंचाना जंग के कानून के खिलाफ था, लेकिन शाह ने 21 अक्टूबर 1603 को शहर में लोगों का कत्ल आम किया। इसके बाद नख्चवान और यरीवान गिर गए। सुल्तान मोहम्मद सिवम, जो उन तमाम वाक़यात की वजह से बहुत परेशान थे और उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया था,
21-22 दिसंबर 1603 की रात को दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए। इनकी उम्र 37 साल थी। उन्हें आया सोफिया मस्जिद के सहन में उनके मकबरे में दफन किया गया। इसे छोटा, गोश्तदार, गोरी जल्द वाला और सिया बालों वाला बताया जाता है। सुल्तान मोहम्मद सिवम के पसमानदिगान में अहमद और मुस्तफ़ा के नाम से 2 बेटे और कई बेटियां हैं। मजीद बरा मसादिर में सुल्तान को नरम मिजाज, पुरसुकून, बावकार, हसास और इंतहाई परहेजगार करार दिया गया है। वो जमात में रोज़ाना 5 नमाजें अदा करते थे। जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया जाता तो वो इज्जत से खड़े हो जाते। वो उलमा की कदर करते थे और उनकी हौसला अफजाई करते थे। वो सूफी खलूती मसलक के शेख अब्दुल मजीद सिवसी के रुकन थे। मुस्तफ़ सीलाने की, मुस्तफ़ा अली, हौका सदलदीन आफंदी और नीवी और बाकी जैसे शायर उनके ज़माने में रहते थे। उन्होंने मदीना मुनव्वरा में एक मदरसा कायम किया। इस्तांबुल में यानी मस्जिद की बुनियाद उनके दौर में रखी गई थी। सुल्तान मोहम्मद सिवम को शिकार पसंद था। वो तीर बनाने में भी माहिर था। वो हमेशा अपने साथ तलवार और कमान रखते थे। वो एक माहिर शायर थे। उनकी नज़में, जो सादा और सादा ज़बान में अदली के फर्जी नाम से लिखी गई हैं, उनके दिल की लज्जत और हसासियत को ज़ाहिर करती हैं। मुंदरजा ज़ैल शेर, जो अदलो इंसाफ और अल्लाह के हुक्म के तई उनकी अकीदत को ज़ाहिर करता है, बहुत मशहूर है। हम जुल्म के हक़ में नहीं हैं, हम इंसाफ के हक़ में हैं। हम अल्लाह की रहमत चाहते हैं, हम उसके अहकामात की तामील करते हैं। 1590 में अबू अयूब अंसारी के मकबरे की ज़ियारत से वापसी पर कुछ कादियों ने, जिन्होंने दावा किया कि उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, अनातोलिया के काज़ी चीफ जज के बारे में शिकायत की। सुल्तान मोहम्मद सिवम ने तहकीकात की और देखा कि काज़ा शुक्र गलत था और इसे बरतरफ कर दिया। सुल्तान ने बड़ी खैर सिगाली के साथ अहल अफराद को रियासती खिदमात सौंपने के बारे में हसासियत का मुजाहिरा किया, लेकिन इसकी मेहरबानी और नरमी का गलत इस्तेमाल किया गया। उन्होंने अपने उस्ताद सदलदीन आफंदी के ख्यालात से बहुत फ़ायदा उठाया। सदलदीन आफंदी सुल्तान सलीम अव्वल के दरबारी हसन कीम के बेटे और सुल्तान मुराद सिवम और सुल्तान मोहम्मद सिवम के पसंदीदा मुशीर थे। यहाँ तक कि सुल्तान मोहम्मद सिवम ने हुक्म दिया कि कोई भी फैसला अपने उस्ताद से मशवरा किए बगैर नहीं किया जाएगा। इस वजह से तमाम वजीर सदलदीन आफंदी के सामने झक गए। वो एक माहिर मौरख भी थे और एक बड़े उलमा खानदान के सरपरस्त बन गए। सदलदीन आफंदी फौज में एक बड़ी इस्लाह करना चाहते थे। जिनिसरियों के नुकसान पर वो फौज के दूसरे हिस्से पर मुश्तमिल इलियट सूबे के सिपाहियों को वो अहमियत और ताकत देना चाहता था जो सुलेमान आज़म के दौर में उनके पास थी। लेकिन इसकी जिंदगी ऐसा करने के लिए काफ़ी तवील नहीं थी, क्योंकि वो 1599 में फौत हो गया था। सुल्तान उस्मान दुवम ने 20 साल बाद इस मंसूबे पर दोबारा गौर किया, लेकिन वो अपनी जान की कीमत पर भी कामयाब ना हो सके। लाला मोहम्मद पाशा की वफ़ात के बाद, जो बचपन से उनके साथ थे, सुल्तान मोहम्मद सिवम कम प्रोफाइल सियासतदानों के तनाज़ात में उलझ गए थे। शहजादों को कम उम्री में अलाला के नाम से सियासतदानों की तरफ से फराहम की जाने वाली तालीम से तरबियत दी जाती थी, और जब वो तख्त पर आते थे तो उन लालों को आम तौर पर अजीम वजीर बनाया जाता था। हौका सदलदीन आफंदी की वफ़ात के बाद सुल्तान मोहम्मद सिवम मुकम्मल तौर पर तन्हा रह गए। इस सुल्तान की सबसे बड़ी बदकिस्मती ये थी कि इसके दौर हुकूमत में इसके अर्द गिर्द के कीमती लोग बहुत कम थे। उन्होंने एक बार कहा था, जिस पर मैंने भरोसा किया उसने मेरे भरोसे को धोखा दिया। मुझे दुनिया में कोई सच्चा और रास्तबाज शख्स नहीं मिल सका। जब वो तख्त नशीन हुआ तो सुल्तान मोहम्मद सिवम ने सबसे पहले अपने आबाओ अजदाद की कब्रों की जियारत की। उन्होंने जुमा की नमाज के जुलूसों के दौरान वजीरों के पास जाकर सुल्तान के साथ रियासत और अवाम के मामलात पर तबादला ख्याल करने की रवायत को दोबारा जिंदा किया, जिसे कोमा सिलमिली कहा जाता था। इस अक़दाम से बड़ी उम्मीदें पैदा हुईं। उनका मिजाज अपने नर्म दिल वालिद से मुख्तलिफ था, जो शान व शौकत के शौकीन थे। उसने महल में गैर ज़रूरी अमले और तफरी को हटा दिया और महल के कर्जों की फौरी अदायगी का हुक्म दिया। उन्होंने एक सादा जिंदगी गुजारना शुरू की। अगरचे ये कहा जाता है कि सुल्तान मोहम्मद सिवम अपनी अल्बानिया में पैदा होने वाली वालिदा सफिया सुल्तान के ज़ेर असर थे, क्योंकि उनसे मोहब्बत और एहतराम था, लेकिन यह मुबालगा आराई है। जब वो तख्त नशीन हुआ तो उसने अपने भाइयों को सुल्तान मोहम्मद दुवम के तंजीमी कानून के बिरादराना फरेम वर्क के तहत फांसी दे दी, ताकि तख्त के दावे के तहत मुस्तकबिल की बगावतों को रोका जा सके। ये फैसला, जो सुल्तान ने बड़े दुख के साथ किया, इस्तांबुल में शदीद गम व गुस्से का बाइस बना। ये आईनी शर्त का आखिरी इतलाक था।
सुल्तान मोहम्मद सिवम यूरोपीय सियासत में दिलचस्पी रखते थे। वो उनके बारे में रिपोर्ट्स पढ़ते थे और इंग्लैंड और फ्रांस के साथ सिफारती ताल्लुकात को अहमियत देते थे। बरतानिया की मलिका एलिजाबेथ ने उनके पास एक उज़्व भेजा। इस तोहफे पर सुल्तान ने मलिका को उनके सफ़ीर के साथ मुबारकबाद भेजी। सफ़ीर के जाने के बाद वो चाहता था कि उज़्व को किसी ऐसी जगह रखा जाए जिसे वो महल में न देख सके। सुल्तान मोहम्मद सिवम के दौर हुकूमत में ज़मीन का कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन सल्तनत जमूद के दौर में दाखिल हो गई। इस दौर में फर्स्ट क्लास के सिपाही और बैरोक्रेट्स आम नहीं थे। इदारों में सुस्त रवि का रुझान था। दीवान हुमायूं इंपीरियल काउंसिल का असर और रसूख दरबारियों के हक में कम हो गया। ताहम सकाफती जिंदगी, आर्ट और साइंस ने अपनी जहानत नहीं खोई।